गुजरात राज्य। We are honored to welcome the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji to this event. Sir, you have added a special dimension to this event with your presence. We once again heartily welcome you, sir. We heartily welcome all distinguished guests on the dais. Thank you and welcome. Now we shall begin this event with an auspicious invocation of praise and prayers to the remover of all obstacles, presenting the Ganesh Vandana. हर कार्य को शुभ करने के भगवान गजानन के इस श्लोक और मंत्र के साथ ही इस कार्यक्रम का शुभारंभ आगाज हो चुका है. Such a beautiful rendition of the Ganesh Vandana, and now I would like to request Mr. A.M. Nayak, Chairman, Nirali Memorial Medical Trust, to address us all with his welcome message. Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Bhai Modi ji, the Honorable Chief Minister of Gujarat, Sri Bhupendra Bhai Patel, Sri C.R. Patil, esteemed delegates and friends. Honorable Prime Minister, sir, we are indeed very happy that you have consented to inaugurate the Nirali Multi-Speciality Hospital and the healthcare campus. It is an honor for me, my family, the Nirali Memorial Medical Trust, and the many doctors and medical consultants here who are committed to providing our patients with the highest standard of healthcare. Last year, we were honored when the Nirali Cancer Hospital was inaugurated virtually by Prime Minister and actually by Gujarat Chief Minister. The Honorable Vice President of India, Sri Venkaiah Naidu, had laid the foundation stone for the multi-speciality hospital last March. And today you have formally inaugurated it with the good wishes and blessing of so many. I am confident that the hospital complex will live up to its goal of opening new horizon in the healthcare. In everything I do, I am continuing a long tradition of service that was begun nearly 100 years ago by my grandfather and carried forward by my father, who one among maybe 100 or 1,000 who returned from Bombay to serve the grassroots of rural India. My father was a Gandhian and freedom fighter, and he dedicated his life to serving the disadvantaged section of society. Honorable Prime Minister, sir, you will be happy to know that both the trust, the Nirali Memorial Medical Trust and the Nayak Charitable Trust, are in line with your declared goals of health for all and Skill India mission. Last year, the Nirali Cancer Hospital carried out over 1,000 surgeries and procedures, 5,550 radiation, and close to 2,000 chemotherapies. The hospital has been equipped with some of the finest facilities in the world. We have handpicked young doctors and specialists, almost all of whom are here today. Sir, you have also consented
to shortly inaugurate a center of excellence in Kharel, which is only 12 minutes from here, towards Bombay. Due to paucity of time, the Prime Minister could not go there, so he has agreed kindly to virtually open it. This is an integrated education and skilling campus, comprising of pre-primary and primary and secondary and higher secondary, with number of hostels for the students and accommodation for the faculty. We take in 1,700 students every year, but our infrastructure is ready for 2,500 students, and we would like to raise it to that. There is a lot of people, lot of students wants to come in. We will appropriately take action how to raise it in the shortest time. The campus also hosts other facilities, such as a sports ground and the science center, which caters to students not just from Kharel schools, but for the entire district. My trust have adopted 40 schools to fulfill the deficiency what there is in those schools. Coming to the other facet of the new Center of Excellence, skill training, before I proceed, Honorable Prime Minister, let me say that the whole country has been enthused with the target you have spelled in the Skill India mission. This is one of the few, probably the first center in the South Gujarat and maybe whole Gujarat, meant only for school dropout, those otherwise who might on the wrong path and be burden to the society. We are training across 9 trades, including for green energy. We also have residential facilities for the students of school dropout. The students are committed to serving the nation. Students across our school and training center are infused with the spirit of nationalism. You can say it is almost part of our curriculum. Honorable Prime Minister, before I conclude, let me take this opportunity to commend you. Commend you, sir, for the inspirational leadership that you are providing to the nation. And that too through most challenging times. We see the country today holding its own among the biggest and the most powerful nation of the world. And Indians everywhere have reason to feel proud of their motherland. It was not long before that India was known as a highly underdeveloped and the country of snakes and elephants. Today, wherever you go, the Indians can hold their head high. Whether it is USA, whether it is Canada or any other country, Indians are making a difference to their economy. And they are our ambassadors. They are our ambassadors. They are passing the word around that this is not the same India under Mr. Modi. And I'm sure Mr. Modi will be there to lead this country for many, many years. And with that, let me say thank you very much for attending this, and particularly thank the Chief Minister, Mr. Patil, and Honorable Prime Minister, who is one of the topmost leader, if not the #1 of the world. Jai Hind. Thank you so much, sir, for your insightful message. I now invite Shri Bhupendra Patel, the Honorable Chief Minister of Gujarat, for his occasional speech.
નવસારીને આંગણે નિરાલી મેમોરિયલ મેડિકલ ટ્રસ્ટ દ્વારા આયોજિત મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ તથા AM નાઇક હેલ્થ કેર કેમ્પસના લોકાર્પણ પ્રસંગે આપણી સૌની વચ્ચે ઉપસ્થિત સમગ્ર ભારત વર્ષને વૈશ્વિક મહામારી કોરોનામાંથી ઉગારી આત્મનિર્ભર ભારત બનાવનાર ભારતના હૃદય સમ્રાટ યશસ્વી વડાપ્રધાન આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, પ્રદેશ અધ્યક્ષ અને નવસારીના સાંસદ શ્રી CR પાટીલજી, નિરાલી મેડિકલ મેમોરિયલ ટ્રસ્ટના ચેરમેન શ્રી AM નાઇક, ટ્રસ્ટી શ્રી જિજ્ઞેશભાઈ નાઇક, ઉપસ્થિત સૌ ધારાસભ્ય સાંસદ સભ્યશ્રીઓ, મેડિકલ ક્ષેત્રે સંકળાયેલા સૌ અગ્રગણીશ્રીઓ, ડૉક્ટર્સ મિત્રો અને પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રીના સાનિધ્યમાં આજનો આ હોસ્પિટલ લોકાર્પણ પ્રસંગ જનસેવા એ જ પ્રભુ સેવાની ભારતીય સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરનારો પ્રસંગ છે. L&T ગ્રુપના ચેરમેન અને પદ્મ વિભૂષણ શ્રી અનિલ નાયકજીની પોતાના વતનનું ઋણ અદા કરવાની આ ભાવનાને મારા અભિનંદન પાઠવું છું. મિત્રો, જેણે પોતાના પ્રિયજન સ્વજન કોઈ ગંભીર બીમારીમાં ગુમાવ્યા હોય તે વ્યક્તિ બીજાના આ પ્રકારના દુઃખ સમજી શકે. શ્રી અનિલભાઈએ પોતાની માત્ર 2 વર્ષની પૌત્રી નિરાલીને કેન્સરને કારણે ગુમાવી એ દુઃખને પચાવી તેમણે પોતાની લાગણીને એક એવા મિશનમાં ફેરવી કે જેથી અન્ય હજારો લોકોના જીવ બચાવી શકાય. પૌત્રીની યાદમાં શ્રી અનિલભાઈ નાયક અને તેમના પરિવારે આરોગ્ય ક્ષેત્ર સેવા માટે નિરાલી મેમોરિયલ મેડિકલ ટ્રસ્ટ અને શિક્ષણ કૌશલ્ય નિર્માણ માટે MA નાયક ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટની શરૂઆત કરી. એક જ વર્ષના ટૂંકા ગાળામાં આ અદ્યતન આધુનિક હોસ્પિટલ જનતાની સેવામાં લોકાર્પિત થઈ છે એ માટે નાયક પરિવારને અભિનંદન પાઠવું છું. દક્ષિણ ગુજરાતના આદિજાતિ વિસ્તારો માટે આ હોસ્પિટલ આરોગ્યનું એક ઉત્તમ ધામ બનશે એવો મને પાક્કો વિશ્વાસ છે. ગુજરાતમાં આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વ અને દિશા દર્શનમાં પાછલા 2 દાયકામાં આરોગ્ય સેવાઓ અને હોસ્પિટલોનો વ્યાપ વિસ્તર્યો છે. મિત્રો, ભૂતકાળમાં આપણે સૌએ એવું ગુજરાત જોયું છે કે જ્યાં વાળું ટાઈમે વીજળી જતી રહેતી અને દીકરીઓની સુવાવડ માટે એમ્બ્યુલન્સ પણ નહોતી મળતી. આજે ગુજરાત દેશનું ગ્રોથ એન્જિન બન્યું છે. પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના સૌના સાથ અને સૌના વિકાસના ધ્યેયને પરિણામે ગુજરાત વિકાસનો પર્યાય બન્યું છે. જ્યારે આજે કુલ 500 બેડની ક્ષમતા ધરાવતી નિરાલી મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ દર્દીઓને સુપર સ્પેશિયાલિટી સેવા પૂરી પાડશે અને દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત, નવસારી, તાપી, વલસાડ અને ડાંગ જિલ્લાના લોકોની આરોગ્ય સેવામાં વધારો કરશે. સાથોસાથ મહારાષ્ટ્રના ધુલે અને નંદુબાર જિલ્લાને પણ આ હોસ્પિટલનો લાભ મળવાનો છે. દેશ જ્યારે વડાપ્રધાનશ્રીના માર્ગદર્શનમાં આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ ઉજવી રહ્યો છે ત્યારે જન જન સુધી સ્વાસ્થ્ય સેવાનો અમૃત પહોંચાડવા માટેનું આ એક ઉત્તમ પગલું છે. ગંભીર રોગની સારવાર આ આરોગ્ય સેવાધામમાં નજીવા ખર્ચ મળતી થવાથી અનેક લોકોના જીવ નિરાલીથી નિરામય થશે, સ્વાસ્થ્યસભર અમૃતમય બનશે. ફરી એકવાર શ્રી અનિલભાઈ નાયકને આ જનસેવા પ્રકલ્પ માટે અને પોતાના વતનની ભૂમિનું ઋણ આરોગ્યલક્ષી સેવાથી અદા કરવા બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવી વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. खूब खूब आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री आपनो. आज के दिन विशेष रूप से जो परिकल्पना साकार होने जा रही है, जिससे केवल समाज ही नहीं, राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य का ही नहीं बल्कि समाज, पर्यावरण एवं मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी, अपने फर्ज एवं संस्कारों और संस्कृति का भव्य प्रदान होने जा रहा है. दक्षिण गुजरात में पनप रहे इस विशाल निराली मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और AM नायक हेल्थ केयर कैंपस से स्वास्थ्य सुरक्षा की दुनिया का एक नया सुनहरा भविष्य बनने जा रहा है. और उसके साथ विशेष रूप से नायक एजुकेशन एवं स्किलिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसका वर्चुअली उद्घाटन करवाने के लिए सहृदय निवेदन करते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से.
the Nayak Education and Skilling Center of Excellence. Yes, the Center of Excellence from where the light of knowledge and expertise will radiate in all directions. Thank you so much, sir. बहुत बहुत धन्यवाद. जिनकी दूरंदेशिता, जिनका सचोट मार्गदर्शन, जिनका देश के प्रति विकासशीलता का अतुल्य कटिबद्धता और मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया जैसे प्रकल्पों का सफलतम आयोजन और उसी से आत्मनिर्भर भारत से बड़े ही आत्मगौरव के साथ विश्व के फलक पर भारत को प्रस्थापित करवाने वाले जो हैं हमारे भारत देश के सुशासक, भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी. आइए तालियों के गर्जन के साथ उनका स्वागत करते हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं उनके उद्बोधन के लिए. नमस्कार. गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, इसी क्षेत्र के सांसद मेरे वरिष्ठ साथी श्रीमान CR पाटिल, यहाँ उपस्थित गुजरात सरकार के अन्य मंत्री महोदय, विधायक, निराली मेमोरियल मेडिकल ट्रस्ट के फाउंडर और चेयरमैन श्री AM नायक जी, ट्रस्टी श्री भाई जिग्नेश नायक जी, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज आप पहले अंग्रेजी में सुना, बाद में गुजराती, अब हिंदी छूटना नहीं चाहिए तो मैं हिंदी में बोल लेता हूं. मुझे बताया गया कि कल अनिल भाई का जन्मदिन था और जब व्यक्ति 80 साल करता है तो सहस्त्र चंद्र दर्शन का अवसर होता है. देर से सही मेरी तरफ से अनिल भाई को अनेक अनेक शुभकामनाएं. उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए बहुत शुभकामनाएं. आज नवसारी की धरती से साउथ गुजरात के इस पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग से जुड़ी अनेक योजनाएं शुरू हुई हैं. स्वास्थ्य से जुड़े आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी आज यहाँ के भाइयों बहनों को नई सुविधाएं मिली हैं. थोड़ी देर पहले मैं यहाँ नजदीक में ही एक कार्यक्रम में था. मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन हुआ है और अब यहाँ आधुनिक हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण करने का मुझे अवसर मिला है. 3 साल पहले यहाँ कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करने का अवसर भी मुझे मिला था. मैं से AM नायक जी को, निराली ट्रस्ट को और उनके परिवार को हृदय से साधुवाद देता हूं और इस प्रकल्प को मैं उस रूप में देखता हूं कि ये उस मासूम के लिए, निराली के लिए एक भावुक श्रद्धांजलि है जिसे हमने असमय खो दिया था. AM नायक जी और उनका परिवार जिस कष्ट से गुजरा, वैसा समय बाकी परिवारों को ना देखना पड़े,
ये संकल्प इस पूरे प्रोजेक्ट में झलकता है। अनिल भाई ने एक प्रकार से पितृ ऋण भी अदा किया है, अपने गांव का भी ऋण अदा किया है और अपनी संतान का भी ऋण अदा किया है। नवसारी सहित आसपास के सभी जिलों के लोगों को इस आधुनिक अस्पताल से बहुत मदद मिलेगी और एक बहुत बड़ी सेवा मैं समझता हूं ये पूरे देश के लिए इसका एक संदेश है कि हाईवे के बिल्कुल सटी हुई अस्पताल है और हाईवे पर जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें फर्स्ट गोल्डन आवर जिंदगी के लिए बहुत गोल्डन पीरियड होता है। ये अस्पताल ऐसे स्थान पर है, हम चाहते नहीं कि लोग ज्यादा आए, हम नहीं चाहते कि एक्सीडेंट हो, लेकिन अगर हुआ तो यहां जिंदगी बचाने की सुविधा भी पास में उपलब्ध है। मैं अस्पताल के सभी डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गरीब के सशक्तिकरण के लिए, गरीब की चिंता कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाना, सबके लिए सुलभ बनाना उतना ही जरूरी है। बीते 8 साल के दौरान देश के हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए हमने एक होलिस्टिक अप्रोच पर बल दिया है। हमने इलाज की सुविधाओं को आधुनिक बनाने का प्रयास तो किया है। बेहतर पोषण, स्वच्छ जीवन शैली, एक प्रकार से प्रिवेंटिव हेल्थ के साथ जुड़े हुए जो बिहेवियरल विषय होते हैं, जो सरकार की प्राथमिक जिम्मेवारियां होती हैं, उन सारे विषयों पर हमने काफी जोर दिया है। कोशिश यही है कि गरीब को, मिडिल क्लास को बीमारी से बचाया जा सके और इलाज पर होने वाला खर्च कम से कम हो। विशेष रूप से बच्चों और माताओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जो प्रयास हुए हैं, उनके स्पष्ट परिणाम आज हम देख पा रहे हैं। आज गुजरात में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हुआ है और हेल्थ इंडिकेटर्स भी लगातार बेहतर हो रहे हैं। नीति आयोग के तीसरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के इंडेक्स में गुजरात देश में पहले स्थान पर आया है। साथियों, जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, उस दौरान राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को हर गरीब तक ले जाने के लिए हमने जो अभियान चलाए, उनके अनुभव अब पूरे देश के गरीबों के काम आ रहा है। उस दौर में हमने स्वस्थ गुजरात, उज्जवल गुजरात का रोडमैप बनाया था। गरीब को गंभीर बीमारी से उस समय 2 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली मुख्यमंत्री अमृतम योजना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मां योजना के रूप में जाना जाता है, वो उसी का परिणाम थी। इसी योजना के अनुभवों ने गरीबों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज सुनिश्चित कराने वाली आयुष्मान भारत योजना, जब मैं प्रधानमंत्री के रूप में सेवा का कार्य मिला तो मैंने इस योजना को लेकर के देशवासियों के पास आया। इस योजना के तहत गुजरात के 40 लाख से अधिक गरीब मरीज
मुफ्त इलाज की सुविधा ले चुके हैं। इसमें बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें हैं, दलित हो, वंचित हो, आदिवासी समाज के हमारे साथी हो। इससे गरीब मरीजों की 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गुजरात में पिछले साल 7,500 हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर भी यहां पर उसका काम हुआ है। साथियों, बीते 20 सालों में गुजरात के हेल्थ सेक्टर ने कई नए मुकाम हासिल किए हैं। इन 20 वर्षों में गुजरात में शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभूतपूर्व काम हुआ है। हर स्तर पर काम हुआ है। ग्रामीण इलाकों में हजारों हेल्थ सेंटर्स बनाए गए, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बनाए गए। शहरी इलाकों में करीब 600 दीनदयाल औषधालय भी बनकर तैयार हुए। गुजरात में आज सरकारी अस्पतालों में कैंसर जैसी बीमारियों के एडवांस ट्रीटमेंट की सुविधा है। गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट की कैपेसिटी 450 से बढ़ाकर 1,000 हो चुकी है। अहमदाबाद के अलावा जामनगर, भावनगर, राजकोट और वडोदरा ऐसे अन्य कई शहरों में भी कैंसर के उपचार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। अहमदाबाद में किडनी इंस्टीट्यूट को और अधिक आधुनिक बनाया जा रहा है, उसका विस्तार किया जा रहा है और जल्द ही इसकी बेड संख्या डबल हो जाएगी। आज गुजरात में अनेकों डायलिसिस केंद्र हजारों मरीजों को उनके घर के पास ही डायलिसिस की सुविधा दे रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से भी पूरे देश में डायलिसिस को लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, ऐसे पेशेंट को अपने घर के नजदीक सुविधा मिले, इसके लिए कोशिश करना, यह अभियान बहुत तेज गति से चला है। पहले की तुलना में अनेक गुना इस प्रकार से किडनी के पेशेंटों के लिए डायलिसिस के सेंटर आज उपलब्ध हुए हैं। साथियों, गुजरात में अपने सेवाकाल के दौरान हमारी सरकार ने बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। चिरंजीवी योजना के तहत पब्लिक प्राइवेट भागीदारी सुनिश्चित करके इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, संस्थागत डिलीवरी को हमने एक व्यापक विस्तार दिया और गुजरात में उसके बहुत अच्छे परिणाम मिले। अभी तक इस योजना के तहत 14 लाख गर्भवती महिलाएं इस चिरंजीवी योजना का लाभ ले चुकी हैं। हम गुजरात के लोग हैं तो हर चीज में से कुछ ज्यादा ही करने की सोचने वाले लोग रहते हैं, दिमाग में कुछ चीजें रहती हैं। मैं जब यहाँ था तो 108 की सेवा हमने शुरू की थी, लेकिन बाद में विषय ये आया कि 108 की सेवाएं, वो जो गाड़ियां पुरानी हुई है उसको निकाल दिया जाए। तो मैंने कहा ऐसा मत करो, 108 की सेवा के लिए जो गाड़ियां हैं, क्योंकि वो तो इमरजेंसी के लिए होती, वो परफेक्ट चाहिए, क्विक रिस्पांस करने की उसकी ताकत होनी चाहिए। लेकिन ये जो पुरानी हो गई गाड़ियां हैं उसको तुरंत निकालने की जरूरत नहीं है। उसको हमने एक नया रूप दे दिया, खिलखिलाहट, और हमने तय किया कि उसकी पूरी डिजाइन बदल दी जाए, उसमें सायरन की आवाज भी बड़ी म्यूजिकल बना दी जाए, और जो माता हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद 3-4 दिन के बाद अपने बच्चे को लेकर के घर जा रही है तो बेचारी को ऑटो रिक्शा ढूंढना, ये सारी मुसीबतें रहती थी। हमने कहा ये जो 108 पुरानी है उसको खिलखिलाहट के लिए बदल दिया जाए और उस नवजात शिशु को लेकर के
जब वो अपने घर जाती है और सायरन उस प्रकार से बजती है तो पूरे मोहल्ले को पता चलता है कि चलिए भाई वो बच्चा अस्पताल से घर आ गया है, पूरा मोहल्ला उसके स्वागत के लिए आ जाता है। तो खिलखिलाहट योजना से हमने ये भी सुनिश्चित किया कि नवजात शिशु के स्वास्थ्य की घर पर भी निगरानी हो। इससे बच्चों और माताओं का जीवन बचाने में, विशेष रूप से आदिवासी परिवारों के घरों में खुशियां लाने में बहुत मदद मिली है। साथियों, गुजरात की चिरंजीवी और खिलखिलाहट की भावना को केंद्र में आने के बाद मिशन इंद्रधनुष और मातृ वंदना योजना के तहत देश भर में विस्तार दिया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पिछले साल गुजरात की 3 लाख से अधिक बहनों को कवर किया गया है। इन बहनों के खाते में करोड़ रुपए सीधे जमा किए गए हैं ताकि वो गर्भावस्था में अपना खान पान ठीक रख सके। मिशन इंद्रधनुष के तहत भी गुजरात में लाखों बच्चों को टीके लगाए जा चुके हैं। साथियों, बीते सालों में गुजरात में डॉक्टर और पैरामेडिक्स की पढ़ाई और ट्रेनिंग की सुविधा भी बहुत अधिक बढ़ी है। राजकोट में एम्स जैसा बड़ा संस्थान बन रहा है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या आज 30 से अधिक हो चुकी है। पहले राज्य में एमबीबीएस की केवल 1100 सीटें थी, आज ये बढ़कर करीब 6000 पहुंचने को है। पोस्ट ग्रेजुएट सीट भी करीब 800 से बढ़कर 2000 से ज्यादा हो चुकी है। इसी तरह नर्सिंग और फिजियोथेरेपी जैसी दूसरी मेडिकल सेवाओं के लिए भी क्वालिफाइड लोगों की संख्या कई गुना बढ़ी है। साथियों, गुजरात के लोगों के लिए स्वास्थ्य और सेवा जीवन के एक लक्ष्य की ही तरह है। हमारे पास पूज्य बापू जैसे महापुरुषों की प्रेरणा है जिन्होंने सेवा को देश का सामर्थ्य बना दिया था। गुजरात का ये स्वभाव आज भी ऊर्जा से भरा हुआ है। यहां सफल से सफल व्यक्ति भी किसी न किसी सेवा के काम से जुड़ा रहता है। जैसे जैसे गुजरात का सामर्थ्य बढ़ेगा, गुजरात का ये सेवा भाव भी बढ़ेगा। हम आज यहां पहुंचे हैं, उसे और आगे जाना है। इसी संकल्प के साथ, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले हो, हम भारत को आधुनिक बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और उसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ एक महत्वपूर्ण पहलू है सबका प्रयास। जन भागीदारी जितनी ज्यादा बढ़ती है, उतना देश का सामर्थ्य बढ़ाने की गति तेज हो जाती है, परिणाम जल्दी मिलते हैं और जो चाहते हैं उससे भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। अनिल भाई और उनके परिवार ने ट्रस्ट के द्वारा सबका प्रयास का जो हमारा संकल्प है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो संकल्प है, समाज के एक एक व्यक्ति को जोड़ करके चलने का जो संकल्प है, उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान है। मैं उनके पूरे परिवार को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।